Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are doing well. The treasure of knowledge is as vast as the ocean. No matter how much it is used, its reserves will never exhaust. Good evening, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to this session about how to start up freelancing journey and to boost your skills. I'm your host Mohsin Ghaffar. I have a bachelor's in electrical power engineering. I have a lot of experience in competitive engineering exams and sessions. Let me introduce our guest speakers for this evening. My first speaker is Muhammad Suhaib Chaudhary, who will shed light on freelancing and how to start freelancing and its outsourcing. Our second speaker is Muhammad Farhan, who will share his experience with us as a Microsoft services and its applications. Please note that we will have a 3 question and answer sessions for this webinar. After each guest speaker will have a 5 minutes question answer session relevant to the content of that speaker, and at the end of webinar we'll have a question answer session in detail. Without wasting any time, I am going to ask my first speaker, Muhammad Suhaib Chaudhary. Please put your mic on and brief about the freelancing journey and how you started your freelancing journey and started its career as a freelancer. Thank you so much. Thank you, Mr. Mohsin Ghaffar. I really respect and appreciate your efforts in conducting this seminar. So, a brief introduction of me. I am Muhammad Suhaib Chaudhary, an expert freelancer and research scholar. I'm currently working remotely as PCB designer in CubeSys International Company. About my education, I have done Bachelor in Electrical Engineering from UT Lahore and Master in Electrical Engineering from NUST Islamabad. I have prior work experience on different roles, like a project coordinator and STEM instructor in Angel International College, and then solar design engineer and embedded system engineer. Recently, I am working as a training electrical engineer in Westway Cements. Besides this professional experience, I am working as a freelancer on different online platforms since 2016. So the agenda of today's webinar is freelancing and outsourcing from my side. So I start from the freelancing, then how to take your role in the freelancing field, and what's the learning platform on the internet, and what are the demanding soft skills in different fields, and how to learn these soft skills, and how to cache these skills on different freelancing platforms, and at the end some motivation. So I'll start from the freelancing. What is freelancing? You people might know about this word freelancing or online work. So basically freelancing is a common term the people use for a person who is self-employed and is not necessarily committed to a particular employer for a long term. हम लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में अपनी आजकल की गुजरते हुए ज़माने में. हमारे ही साथ के कुछ लोग होंगे जो फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे और वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते होंगे. सो बेसिकली क्या है, एक फ्रीलांसर जो होता है वो खुद अपना ही मुलाजिम होता है. वो खुद ही अपने गोल्स, अपने एम्स, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स खुद ही डिफाइन कर रहा होता है कि ये एक फील्ड है. फॉर एग्जांपल उसने अर्निंग करनी है, उसने किस लेवल की करनी है अर्निंग, और किस फील्ड में करनी है ये वो खुद ही डिसाइड कर रहा होता है. वो किसी कम के मातहत नहीं होता. और इसके जो बेनिफिट्स में अगर हम देखा जाए या इसके एडवांटेजेस में, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं. जैसे आपको इंटरनेट चाहिए हो, और आज के मॉडर्न एरा में आपको इंटरनेट कहीं भी इजीली अवेलेबल है. कॉमन कमोडिटी है हमारी, और आपका दिल जब चाहे आप तब काम कर सकते हैं. इसमें कोई आपको बाउंड नहीं है कि आपने अभी काम करना है या इतनी देर में काम करके देना है. वो बनते हैं जब आपके क्लाइंट्स बनते हैं, फिर आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है. और इसमें कोई लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं है आपकी. अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनती भी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ माइलस्टोन बनती है. आप स्टेप बाय स्टेप अपने काम करते हैं और अपनी पेमेंट लेते हैं. एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे है. और आप इसमें कोशिश ये करते हैं कि आप नए से नए क्लाइंट्स बनाएं और अच्छे क्लाइंट्स बनाएं अपनी फील्ड से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं अपनी मार्केट में अपने मुताबिक अपने कस्टमर ढूंढूंगा और कोशिश यही करूंगा कि ऐसा कस्टमर मिले जो हमेशा मेरे पास ही हो. लाइक 2-3 ही मिल जाए और वो मेरे लिए काफी हो. मैं अपनी
पढ़ाई भी करता रहूँ, अपनी जॉब भी करता रहूँ और मेरी फील्ड भी चलती रहे। और अगर आपको लोग ये कहते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है इसमें सिर्फ आप अर्निंग कर सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अर्निंग तो एक नेसेसिटी है, मतलब इसमें एक चीज़ है जो मैंडेटरी है। इसके अलावा आपका जो टैलेंट है इसमें इम्प्रूव होता है। आप नए सॉफ्टवेयर सीखते हैं, आप मैनेजमेंट सीखते हैं, आप ये सीखते हैं कैसे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट लैंग्वेज बैरियर्स को आप ओवरकम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्रीलांसिंग के बारे में। कुछ लोगों को पहले पता होगा, कुछ लोगों को अभी उनके नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा और आप इसके बारे में मजीद रिसर्च कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज हाउ टू टेक योर रोल। आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? आप अपनी पर्सनैलिटी को एज अ फ्रीलांसिंग में कैसे जस्टिफाई करते हैं? अगर आपने इससे पहले कभी फ्रीलांसिंग नहीं किया, आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मोस्टली जो मैंने अपने इस करियर में देखा है, तो लोग स्टार्ट करते हैं टीचिंग वाली साइड से एज अ होमवर्क हेल्पर। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बेसिकली मैं बात कर रहा था आप अपना रोल कैसे इसमें डिफाइन करते हैं फ्रीलांसिंग में। मोस्टली जो मैंने अपने करियर में देखा है अभी तक, वो ये है कि लोग स्टार्ट करते हैं एज अ ट्यूटर एंड एज अ टीचर, एज अ असाइनमेंट हेल्पर और असाइनमेंट राइटिंग सर्विसेज या कंटेंट राइटिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये स्टार्ट होता है लोगों का इस फील्ड में। जो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखे हैं, ये इसलिए आसान होता है क्योंकि हमने इसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसको वो पीक पर भी लेके जाते हैं, अपनी कंपनी भी बना लेते हैं। बहुत अच्छा एक वो है। लेकिन अगर आपने हाई एजुकेशन आपके पास है, आप डेफिनेटली अगर कोई इंजीनियर है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके पास सॉफ्ट स्किल्स होंगी। वो एज अ डिजाइनर काम कर सकता है। कैसे काम कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर मैं एक सॉफ्टवेयर मुझे आता है, मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजाइन कर रहा हूँ। कोई ऐप डिजाइनर है, ऐप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, उसके अंदर ऐप को डिजाइन कर रहे होंगे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं आपको सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ। कोई मैकेनिकल वाला है तो कोई इसके अंदर स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा होगा। और फिर इसके बाद आते हैं, अगर आप एज एन एक्सपर्ट काम करते हैं तो आप एज एन एक्सपर्ट या तो आप किसी सॉफ्टवेयर पे एक्सपर्टीज होगी या किसी हार्डवेयर पे आपकी एक्सपर्टीज होगी, या आप अगर एजुकेशन के वो लोग लाइक जो अप्लाइड साइंसेस से कंसर्न रखते हैं, वो इस पे एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी काम कर सकते हैं। फिजिक्स का एक्सपर्ट या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, मैथमेटिक्स, या कुछ लोग जो ई कॉमर्स आजकल बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है, उसमें वो लोग ई कॉमर्स के एक्सपर्ट लाइक अमेजोन की सर्विसेज देते हैं, वो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हैं। फिर एट द एंड अगर हम इस हायरार्की को देखा जाए कि एक पर्सन अपना बिजनेस शुरू करता है, मतलब बहुत ही पहले वो अकेला होता है, फिर आगे बढ़ता जाता है। आप देखते हैं कि आपके साथ के लोग भी सेम टैलेंट वाले हैं और आप उनको अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो फिर आप एज अ कंपनी ग्रो करते हैं। आप एज अ कंपनी में क्या करते हैं? आप फॉर एग्जाम्पल पहले लर्निंग कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ, आप आ जाते हैं, आप कहते हैं मेरे साथ के 3 दोस्त हैं, मैं उनको साथ में अटैच करता हूँ। आपकी थोड़ी सी गाइडेंस, इवन उन्होंने भी सेम सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, आपके सेम कैलिबर के लोग होते हैं, आप उनको अटैच करते हैं, आप आउटसोर्सिंग करते हैं। जब आप आउटसोर्सिंग आप करते हैं तो आपकी जो अर्निंग फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख पर मंथ थी, वो हो सकता है वो 2.5 लाख पे चली जाए। ये मेरी अपने इससे है, तो मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो हमारे थे रोल, और उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि हम इतने ज़्यादा स्किल्स कैसे सीखें। लाइक अगर लाजमी नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर पे काम है, हम एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो नेक्स्ट पे काम आ जाता है, वो हमें आता नहीं होता, और एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है। तो होता ये है कि बेसिक प्रिंसिपल हर चीज़ का सेम ही होता है। आप एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं, जो बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं काम वो भी वही कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा एफिशिएंट होंगे, कुछ के अंदर ज्यादा फिजिबिलिटी होगी, रिलायबिलिटी हाई होगी, या कुछ में ज्यादा ईज होगी, ईज ऑफ एक्सेस ऑफ डिफरेंट ऑप्शन। सो कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये जो मैंने अपनी इस करियर में देखे हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसमें यूडेमी एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें मैंने
अगर आप देखें इंग्लिश से लेके इवन अप्लाइड साइंसेस, कॉमर्स के जो कोर्सेज पढ़े, इंजीनियरिंग की हर फील्ड के कोर्स पढ़े हैं। इसी तरह आगे कर्सेरा है, यूट्यूब है, यूडासिटी और आगे जो डिफरेंट मैंने ये नेम लिखे हैं वेबसाइट्स के, सब ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट्स हैं। इस पे आप कोई भी आपका अपने मुताबिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, कोर्स पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट उसने आइल्स करना है तो उसको वहाँ उससे बहुत अच्छे कोर्सेज डिजाइन हुए हैं फॉरेन कंट्रीज के, अब्रॉड के लोगों के विद एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ पेड साइट्स भी हैं यूट्यूब, लेकिन हमारे पास फ्री है। जो हमारे पास यूडेमी है, ये हमारे पास एक पेड है, लेकिन इसके जो कोर्सेज आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यूडोरेंट से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये मैंने यूडेमी ओपन की हुई है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे आइल्स का कोई कोर्स में डाउनलोड, तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। इसमें 430 लेक्चर्स हैं और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको डिफाइन है। तो मैं जस्ट इस कोर्स को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। एक फेमस वेबसाइट है, इस पे आते हैं तो यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ टोरेंट के जरिए ना, यहाँ से। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं, आपने कोई फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं मैटलैब सीखना चाहता हूँ, मैटलैब में इतने इसके मॉड्यूल्स हैं, आपको ये सब मिल जाएगा और ये यूटोरेंट पे भी आपको फ्री पड़ेंगे। इवन ये मैं खुद यही से डाउनलोड करके पढ़ता रहता हूँ अपने कोर्सेज। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। उसके अलावा कर्सेरा है, वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, उसके मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज। और आप ये वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ द स्किल आप ले सकते हैं। और यूट्यूब तो आप सबको पता है कि उसमें हमें कोई भी मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे लोगों ने उसके सोल्यूशन अपलोड किए होते हैं। उसके बाद ये कुछ स्किल्स हैं जो मुझे लग रहा था कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर इस फील्ड से होंगी, इन फील्ड से होंगी। तो इसमें ये कुछ डिमांडिंग सॉफ्ट स्किल्स जो मैंने अपने फ्रीलांसिंग के करियर में देखे हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं, वो डिमांडिंग स्किल्स हैं जो कि आज तक कस्टमर्स को मैंने लेते हुए देखा गया है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इवन मैकेनिकल वाले भी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें पढ़ाई जाती है, उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत होती है। C++, जावा, पाइथन और एलिगेटर, इट्स ना। तो होता ये है कि अगर आप इसमें से बिलीव मी, मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि अगर किसी एक लैंग्वेज पे आप अबूर हासिल कर लें, आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप पे लाखों अर्न कर सकते हैं। और ये नहीं कि पूरा दिन काम करके, बहुत ही थोड़े घंटे काम करके। ये मेरी अपनी जिंदगी में मेरी मतलब कि मैं कर चुका हूँ, आपको वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ तो हमारे में उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर कोई सर्किट डिजाइनिंग में मुझे सिखाया गया था सिर्फ प्रोटियस। लोग ये शिकवा करते हैं कि हम इतने सॉफ्टवेयर कैसे सीखे, हमें तो पढ़ाई नहीं गई। ये मेजॉरिटी ऑफ मेरे जो कुलीग्स हैं मुझसे यही शिकवा करते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ये पढ़ाया गया था, इसके बाद मैंने ये भी और इसके आगे मैंने जो सीखे हैं वो खुद सीखे हैं, और ये सारे इंटरलिंक्ड है, आपको एक आगे बाकी भी आ ही जाते हैं। इसी तरह पीसीबी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये कोड लैंग्वेज पे आपको, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, आप वर्क पे चले जाएं, फाइबर पे चले जाएं, फ्रीलांस पे चले जाएं, आपको ये मैंने यहाँ पे स्किल्स लिखे हैं या जो सॉफ्टवेयर लिखे हैं, सबका काम पड़ा है, आपको इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास स्किल है, आप वहां जाके इसको अवेल कर सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को गेट कर सकते हैं। ये अल्टीम जिसकी मैं आज भी जॉब कर रहा हूँ एज अ पीसीबी डिजाइनर, मैं इस सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1.5 लाख में इससे अर्न कर रहा हूँ पर मंथ, और डेली 3 to 4 आवर वर्क करके। फिर ऐसे ही कुछ सिस्टम्स हैं जो कुछ बड़े सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैटलैब था, ये सोलर सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं। ये ई टैप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो मैं अभी बेस्ट फ्रेंड में काम कर रहा था एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर, तो उनका एक प्लांट लग रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि ई टैप पे उसका हार्मोनिक एनालिसिस कर दे, और बिलीव मी वो मुझे उसके इन लैक्स पे कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंपनी को पे करना, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। तो स्किल्स आप सीख लेंगे, आप स्किल सेट ले लेंगे, आप सॉफ्टवेयर आप सीख लेंगे, उसका ये नहीं है कि अगर आपको आप फ्रीलांसिंग में नहीं आते, लेकिन वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको फायदा देंगे, लाजमी सी बात है, मैंडेटरी है। इसी तरह ये बाकी फील्ड्स के कुछ मैंने सॉफ्टवेयर मेंशन किए हैं, ये वो हैं जो मैंने अपने 6 साल के कैरियर में मैंने देखे हैं, बार बार देखे हैं, डेली की बेस पे देखे हैं कि इनका काम वेबसाइट्स पे पड़ा होता है। तो फिर स्किल लेने के बाद हम आ जाते हैं कि अब हमने इसको कैश करवाना है।
तो ये कुछ फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, टूलॉन्स, फ्रीलांस, गुरु, ये पीपल पर आवर है, इस तरह 99 डिजाइन स्टडी में, चेक स्टडी कोर्स ही लो। मैंने अपना खुद जो कैरियर स्टार्ट किया था वो फाइबर से किया था, देन अपवर्क मूव किया, स्टडी में भी काम किया, कर्सेरा पे भी काम किया। तो अगर मैं इसको एक्सरसाइज करूं, मैं इसकी डिटेल में तो नहीं, हम इस अपने इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है इसमें नहीं जा रहे कि इन पे आप अकाउंट कैसे बनाने हैं, जिन पे गिग्स कैसे करनी है, काम कैसे पकड़ना है, वो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन अगर हम फाइबर को देखें तो इस पे वो लोग जाते हैं जिनको, जो इंजीनियरिंग के लोग होते हैं ज्यादातर, जिन्होंने राइटिंग सर्विसेज देनी होती है, कंटेंट राइटिंग की, या जिन्होंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले जो काम करते हैं, इस पे कंप्यूटर साइंस का, आईटी का, वेबसाइट्स का बहुत ज्यादा काम है, वो इस पे जा सकते हैं। अपवर्क एक बहुत ही ग्लोबल और मतलब बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है, इस पे आपके पास लिमिटेशन बहुत कम है। इस पे मेजोरिटी तो आपको पूरी पूरी कंपनीज मिलेंगी जो आपको हायर कर लेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हायर कर लेंगे। मैं खुद अपवर्क के थ्रू हायर हुआ हूँ, इस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह फ्रीलांस पे भी ऐसा ही है, ये गुरु पे भी आपको लॉन्ग टर्म जॉब्स मिल जाएंगी। और कुछ लोग जो मेरी ऑडियंस में हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करते हैं, तो उनके लिए फाइवर भी बहुत अच्छा है, 99 डिजाइन बहुत अच्छी वेबसाइट है। और वो लोग जो स्टार्टअप लेना चाहते हैं, जिनके पास अच्छी जो मतलब बैचलर तक की भी एजुकेशन है उनके पास, तो अगर वो राइटिंग सर्विसेज हम में से मोस्टली लोग दे ही सकते हैं, या जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, तो कर्सेरो बहुत अच्छी साइट है इसका, एज एन एक्सपर्ट, एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। इसी तरह चेक पे एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप हायर हो सकते हैं। ये स्टडी भी एक वेबसाइट है, इसमें मैं काफी अच्छा ट्यूटर रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ। और ये वो वेबसाइट है मतलब जो खुद मैंने अपनी लाइफ में चेक की है, अपने करियर में मैंने चेक की है, और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इस पे आपको काम मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें, आपको इसमें किसी पे कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंट बनाने में, वो हम आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। इसके आगे एक मोटिवेशन थी कि मैं स्टडी वे के मेरे अकाउंट की डिटेल्स थी, तो ये मेरे लेस देन अ मंथ की मेरी इनकम थी। और फिर मैं सिर्फ एज ये काम नहीं कर रहा, मैं बेसिकली एक फिक्स जॉब कर रहा हूँ, या फिर एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। मुझे आज भी याद है, लाइक 500 पर वीक या 1000 पर वीक मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद इन लैक्स में गए हैं, तो वो इसी तरह स्किल सीखते गए हैं, इसी तरह इन प्लेटफॉर्म को फॉलो किया है। यहाँ से यूडेमी से कोर्सेज सीखता रहा हूँ मैं, साथ साथ मैंने कुछ रिस्क भी लिए हैं, चैलेंजेस लिए हैं, कुछ चीजें नहीं भी आती थी उसको सीख के किया है। तो ये आपकी इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट करते हैं। आप अपने, इवन हम लोग ज्यादातर जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी जो जरूरियात है वो पूरी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को ज्यादा आगे परस्यू कर सकते हैं। तो फिर मैंने आउटसोर्सिंग स्टार्ट कर दी, कि मैंने लोगों से काम करवाना शुरू कर दिया, और मैं खुद सिर्फ काम पकड़ता था, और मेरे ज्यादा अच्छे क्लाइंट्स बन गए। उसी तरह जब आप लोग करेंगे, आपके पास इतने लोग आ जाएंगे आपके पास, कि आपके पास जो काम है अबंडेंट फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपको लोगों को हायर कर लेंगे, आपकी माइक्रो लेवल पे कंपनी बन जाती है। ये था मेरी तरफ से। मैं इनवाइट करता हूँ अपने नेक्स्ट स्पीकर को, मिस्टर फरहान को, कि वो स्पीकर वाले और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको एक्सप्लेन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंजीनियर मोहसिन गफ़ार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस वेबिनार के लिए। इंजीनियर शुएब चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया अबाउट फ्रीलांसिंग, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर टू सर्व यू फॉर दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन वो इस फील्ड से अटैच नहीं रह सके। उनकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल आप मेरी भी ले सकते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्ट्रक्शन की जर्नी स्टार्ट की। So I started Microsoft Office instruction in 2019 with the first batch of Microsoft Word with International Islamic University student. As a journey, I will say that मैंने MS start किया हुआ था, तो मैं अटैच हुआ अपने प्रोफेसर्स के साथ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पब्लिकेशन की, तो ड्यूरिंग पब्लिकेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखा,
तकरीबन more than 5 months I started learning Microsoft Office, Word, PowerPoint, and Excel. After that, I decided that why not I should also try teaching Microsoft Word. So I joined Microsoft Office course with Certiport. मैंने स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दिया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 937 आउट ऑफ 1000 मार्क्स आए, जिसके बाद मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि क्यों ना आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ मूव कर जाएं, आपकी स्किल्स इतनी अच्छी है, आपने आप को पॉलिश किया हुआ है, तो आप बैच स्टार्ट करें, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आप टीचिंग करें, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे हम, आपने जस्ट टीचिंग करनी है। तो मैंने स्टार्टअप लिया इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मैंने पहला बैच जो है ना वो कंप्लीट किया और सर्टिफिकेशन भी मैंने प्रोवाइड किया with the collaboration of Mechanical Engineer Alumni Association. After that, I started Microsoft Excel training in 2021. इस सब बताने का मकसद यही है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, शोएब भाई की तरह नहीं होते एक्सपर्ट इतने के अपने आप को हार्ड वर्किंग, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम किया है, लेकिन मैं इस तरह कह सकता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम हम नहीं कर सकते या उनका एक्सपर्ट लेवल इतना नहीं है कि वो इस चीज़ को चूज कर सकें। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की तरफ भी जा सकते हैं, आप उस स्किल्स की तरफ भी जा सकते हैं जो आपके अंदर हैं। लाजमी नहीं है कि आपने फील्ड की तरफ ही देखना है, जो स्किल्स आपके अंदर है आप उसी को देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस जगह पे सरवाइव कर सकता हूँ, आप उसी चीज़ को पिक करें और अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को पॉलिश करें उस फील्ड में जिसमें आप कह सकते हैं कि आप हुनर रखते हैं उस चीज़ का। तो यही मैं कहूँगा कि मैंने भी ऐसे ही स्टार्टअप लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैं पहले एज अ फ्री सर्विसेज देता रहा, उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप फाइवर को ज्वाइन करें, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप जो है ना फाइवर पे ग्रूम करें। तो मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, 6 महीने 7 महीने में ऐसे ही अकाउंट बना के मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कि मेरा फाइवर का अकाउंट भी है या नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, ट्रेनिंग में मैंने फाइवर पे वर्क करना सीखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखी, रैंकिंग के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने अपना एक क्या कहते हैं गिग जनरेट की, गिग जनरेट करने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर मुझे पहला ऑर्डर आ गया, जो कि एक टीचिंग लेवल का था। मतलब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टीचिंग मतलब जो है ना कोर्स करना था, एक कंसल्टेंसी देनी थी। जिस तरह आपको शोएब भाई ने अभी बताया कि आप स्टार्टिंग टीचिंग से कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन से आप टीचिंग से स्टार्टिंग ले सकते हैं, इसी तरह मैंने भी टीचिंग से स्टार्टिंग ली। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक्सपर्ट लेवल का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंसल्टेंट हूँ, मैं कोर्सेज भी डिज़ाइन करके दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 से 4 इंस्टीट्यूट्स को कोर्सेज भी डिज़ाइन करके दिए हैं, जिसमें यूके, यूएसए और चाइना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन अपनी बतानी थी कि मैं ऐसे स्टार्टअप मैंने लिया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन $200-250 के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो कर रहा हूँ आजकल जो मेरे चल रहे हैं। स्टार्टअप मैंने कहाँ से लिया था मैं आपको बताता हूँ। मैं $5 पर आवर अर्निंग स्टार्ट की थी मैंने। तो मेरी पहले मंथ की जो अर्निंग थी वो अबाउट यू कैन से 4000-5000 जो है ना जस्ट मेरी मंथली जो है ना वो स्टार्टिंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरी इस मंथ जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो इस मंथ पे जो मेरी अर्निंग है वो अराउंड $200 पर मंथ है। इसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ। मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि जॉब भी ज़रूरी है, जस्ट फ्रीलांसिंग नहीं, आपने फ्रीलांसिंग एज अ पार्ट टाइम रखना है, जॉब को भी स्टार्टअप रखें, एज अ स्टार्टअप आप जॉब भी रखें, फ्रीलांसिंग भी करते रहें। एट द एंड जब आपको लगे कि अब मैं फ्रीलांसिंग से सर्वाइव कर सकता हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, फिर आप स्विच कर सकते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। तो फ्रीलांसिंग आप एज अ जॉब भी फिर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये जस्ट आपकी स्किल्स हैं। आपको देखना है कि आपने कौन कौन से गोल्स कवर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्किल्स को जज करना है कि आप में कौन सी स्किल्स हैं और कितना आप में पोटेंशियल है एज अ फ्रीलांसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जज किया है कि मैं इलेक्ट्रिकल साइड से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अटैच हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से अटैच हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अटैच हूँ।
तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सर्चिंग की। यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, जो चीज़ आपकी इंटरेस्ट की आप उसको सर्च करें, अपनी स्किल्स को ग्रूम करें, आपको हर चीज़ यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, फ्यूचर आपने देखना है कि आप जो स्किल्स कर रहे हैं उसका फ्यूचर है भी या नहीं। आप ग्रूम करें अपने आप को, अपग्रेड करें। आपने लो लेवल स्किल्स की तरफ नहीं जाना, आपने हाई लेवल स्किल्स की तरफ जाना है। आपने देखना है कि उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में आप उसको compete भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले नोट्स नोट्स डॉक्यूमेंट्स पीटीसी जो है ना कंप्यूटर में होते थे, जो आप क्या करते थे, जैसे उसमें आप टाइप करते थे और उसको सेव कर लेते, नोट्स टाइप जो है ना आपके हो जाते थे। तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आते थे कि आपके स्पेल मिस्टेक्स होती थी, उसके बाद आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होती थी, तो डिफरेंट आपकी मिस्टेक्स होती थी उसमें। जबकि अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया उसकी जगह उसमें ग्रूमिंग ये है कि आप ऑटो स्पेल कर सकते हैं उसको। उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं, मिस्टेक्स जितनी भी आपकी होंगी वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो हाईलाइट करके आपको बता देता है, रेड कलर की आपको लाइनिंग आ जाती है नीचे कि आपके स्पेल मिस्टेक है या फिर आपका ग्रामर मिस्टेक है, कुछ भी आपका एरर हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बता देता है। तो ये जस्ट आपका क्या है, अपग्रेडेशन है, आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने लेवल को, अपनी स्किल्स को। तो यही चीजें हैं जो आपने सीखनी है। स्किल्स मैटर करती हैं, आपकी हार्ड वर्किंग इतनी मैटर नहीं करती, स्किल्स और स्मार्ट वर्क आपका मैटर करता है। तो आपने फ्यूचर के बारे में देखना है कि आपका फ्यूचर क्या है, स्किल्स कौन सी आजकल जो इन हो रही हैं 2022 में अगर हैं, तो 2023 का आप सर्च करें कि मोस्ट रिकमेंडेड कौन कौन सी स्किल्स होंगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, आप उन पे काम करना शुरू कर दें। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर मैं बात करूं तो आजकल जो मोटिवेशन है, जो रिसर्च है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हो रही है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जॉब क्रिएट होंगी फ्यूचर में, इस चीज का कहा जा रहा है। तो ये चीजें आपका एक रिसर्च है, आप रिसर्च करें इस चीज को कि आपने नेक्स्ट लेवल पर कैसे अपने आप को देखना है। तो आप फ्यूचर के बारे में देखें, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर ग्रिप करें। लाजमी नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर कर लें उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप करें उसको, आप सेकंड पर स्विच कर जाएं। आप देखिए कि कहाँ आप अप्लाई करते हैं, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपकी हार्ड वर्क होगी। अगर आप में आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको जस्ट एज अ, आप कह सकते हैं कि आप रट्टे के तौर पे उसको लेंगे और जस्ट आप जो है ना खारी, आप कहेंगे जी खारी है ये, मेरा ये वाला जो सब्जेक्ट है ये खारी है, मैं जो है ना जस्ट पास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपने अगर इंटरेस्ट बिल्ड कर लिया किसी चीज में तो बहुत ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आपके पास लैपटॉप मौजूद है, आप स्टार्टअप लें, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा अगर आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज सर्च करते हैं। तो ये जस्ट आपको मैं एक गोल बता रहा हूँ जो मेरे गोल्स थे। मैंने 5-6 महीने में जॉबलेस रहा हूँ, मैंने कोई जॉब नहीं की, कोई जॉब नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को स्विच किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बेस पर ही जॉब कर रहा हूँ अभी तक। मतलब मुझे एज अ फील्ड मैनेजर कोई इलेक्ट्रिकल साइड पे मुझे कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है ड्यूरिंग यूर लर्निंग, कि आपने किन चीजों को ग्रिप करना है, किस चीज पे आपने एक्सपर्टीज लेनी है। तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं कि मैंने क्यों चूज किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, क्योंकि आप देख सकते हैं एजुकेशनल लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर और बिजनेस लेवल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज हो रहा है। आप स्कूल लेवल से लेकर बिजनेस लेवल तक जहां भी जाएंगे आपका वास्ता माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पढ़ना है। तो मैंने इसको इसलिए भी चूज किया क्योंकि आपको हर जगह इसकी, इस स्किल के अलावा आप किसी भी स्किल्स को नहीं देखेंगे। अगर आपने थीसिस डिजाइन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सामने है, अगर आपने कैलकुलेशंस करनी है फ्यूचर अजम्पशन करनी है, कोई भी आपकी कोई भी ऐसी थ्योरीज हैं, तो आपने लाजमी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से होकर गुजरना है। आप अगर रिसर्च भी कर रहे हैं उसको आपने प्रेजेंट करना है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से गुजरना है। तो ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है, इसका बहुत फ्यूचर है। क्योंकि जहाँ भी आप जिस जॉब में भी जाएंगे आपने इस स्किल से गुजरना है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं इस चीज़ में तो आप अपनी कंपनी के लिए भी आप एडवांटेज हो सकते हैं।
तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इन्वेंट्री डिज़ाइन में हो रही है, इनवाइसेस आपकी जनरेट हो रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इस पर, और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस चार्ट्स वगैरह आपके, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल दिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। बेसिकली ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एक पावर पॉइंट पर ही डिजाइंड एनिमेशन स्क्रीन है। आप देख सकते हैं ये एडवांस लेवल का पावर पॉइंट है, मतलब आपने अगर कोई एक्सपर्ट है इस चीज़ में तो वो इसको जनरेट कर सकता है। ये डिजाइंड है सारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत कुछ कर सकता है। इसी तरह वर्ड भी आपके पास है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जो कोलैबोरेट करते हैं एजुकेशन, इंडस्ट्रियल और बिजनेसेस को। तो आपके पास टाइम है, आप कुछ भी सर्च करें। मैं फोकस कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ये है। शुएब भाई ने फोकस किया इलेक्ट्रिकल पर क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बहुत थी। तो आपने देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है जिसको आप ग्रूम कर सकते हैं, जिस पे ग्रिप करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्निंग एक पैशन होना चाहिए, मतलब अगर आपने अर्निंग करनी है पैशन के साथ अगर आप अर्निंग करेंगे तो आपको मजा आएगा काम करते हुए। अगर आप बोरिंग एक रूटीन वर्क में काम कर रहे हैं और वो बोरिंग है तो आपको उस काम करने का मजा नहीं आएगा। आप अर्निंग तो करेंगे लेकिन आपको हैप्पीनेस नहीं होगी। तो आप इस काबिल बनाएं अपने आप को कि आप हैप्पी भी हो और आपको अर्निंग भी होती रहे आपकी, और आपको काम करने में मजा भी आए। तो मैं ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसलिए आपको मतलब मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। मुझे भी नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप बोर्ड भी एक ऑप्शन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपवर्क पे आप जाएं, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप पहले फाइवर पे जाएं, वहां पे अपनी गिग को बनाएं। गिग कैसे बनानी है आपने, आप ये यूट्यूब से देखें। अगर आपके पास इसकी एक्सपर्टीज है तो आप क्या करें, अगर आपने इस पर कोई काम भी किया हुआ है, अपना कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसको वहां पे शो केस करें, उसको वहां पे अपने पोर्टल पे अपने पोर्टफोलियो पे लगाएं, ताकि जो कस्टमर आएगा वो आपका काम देखेगा कि आया कि इसको ये सिर्फ इसने लिखा ही हुआ है या इसने ऐसा काम पहले कभी किया भी हुआ है। तो उसको 50% गारंटी तभी मिल जाएगी जब वो आपका ना रिलेटेड प्रोजेक्ट देखेगा वहां पे, तो वो कुछ श्योर हो जाएगा। फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको अप्रोच करेगा, फिर आप उससे डील करेंगे तो आपको वहां से मिल सकता है। इसी तरह आप अपवर्क पे अपना आपका अकाउंट होना चाहिए। अपवर्क पे ई टैप बहुत ही फैला हुआ है। इवन मैंने खुद जॉब की हुई है ई टैप की, डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, लाइक डेली 4 to 5 आवर मैं उनको दिया करता था बाहर की कंपनीज को। तो ई टैप के वहाँ बहुत ज्यादा जॉब्स पड़ी हैं, और इवन क्योंकि ई टैप बहुत ही वास्ट है, उसमें इवन आपके बिल्डिंग्स के डिजाइन का, एनर्जी मैनेजमेंट के जॉब्स भी पड़ी हैं वहाँ पे, जो उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर लिंक्स भी होते हैं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये वो टूल है कि इस पे आपको काम एक तो थोड़ी सी एफर्ट से मिल जाता है, और कि आपकी जो कोशिश है वो मतलब नाकाम भी नहीं जाती, और ये है कि आपका जो हौसला वो पस्त नहीं होता, आपको कुछ टाइम बाद, थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको काम मिल जाता है। जी, अदर क्वेश्चन प्लीज। ये आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप फाइबर पे जाके बिकम अ सेलर पे जा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आपको ई टैब में मैंने अपना अकाउंट एक्चुअली इस पे ऑफ किया सभी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये ई टैब पे लोगों ने काम करके दिए हुए, ठीक है। ये लाइक इसने लाइक 11 इसके डन जॉब्स जो इसकी हैं, तो ऐसे लोग बैठे हैं इसमें, बेस्ट सेलिंग में बैठे हैं जो लोग काम करके दे रहे हैं। आपको आना चाहिए, आप ये कैसे बनाएं, कितनी अच्छी बनाएं, ये स्किल है भी, ये बेसिकली एक स्किल है। आप यहाँ से अपना ये इन लोगों की प्रोफाइल्स को खोल के आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमेशा होना ऐसा चाहिए, जब मैं भी था, तो फॉर एग्जाम्पल आप गिग बनाना चाहते हैं, आप पहले देखें लोग उस गिग पे लोगों ने कैसे गिग को डिजाइन किया हुआ है। कोई 8-10 लोगों की गिग्स को ओपन करके देखें, और फिर देखें कि मैं अपनी गिग को कैसे डिजाइन करूं, मैं अपने काम को कैसे कैश करवाऊं, अपनी स्किल को मैं कैसे कैश करवाऊं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक थे अली अकबर साहब, वो आप वेलकम है क्वेश्चन के लिए जी। ओके, अली अकबर, अगर आप
मुझे सुन रहे हैं तो आपसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे निशान जब्बार, मैं उनको काइंडली पहले मौका दे रहा हूँ जी। निशान जब्बार, काइंडली रिपीट योर तो मैं ये कह क्वेश्चन। रहा था कि अगर किसी को फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता, तो वो जी बेहतर है जी कि पहले विजिट करें जो डिजिस्किल्स के जी, डिजिस्किल्स के प्लेटफॉर्म पे है, हिशाम एग्जैक्टली। सर्वर करते हैं, उनका फ्री कोर्स पड़ा है। वो आपको फ्रीलांसिंग के बारे में जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, जीरो से स्टार्ट करवाएंगे आपको और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। आप उनकी मतलब कोर्सेज चेक कर लें, ताकि वो जो स्टार्टिंग जिन्होंने करनी है, ताकि उनकी जो डिफिकल्टीज है वो दूर हो जाए। तो फिर आगे बंदा काम के बारे में सोचता है कि यार आगे हमने करना क्या है, जी जी, बिल्कुल आप वो फिर आगे आगे एग्जैक्टली सही फरमा रहे हैं। ये हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट का था, बहुत अच्छा एक स्टेप था कि उन्होंने ये जी स्टार्ट किया डिजी स्किल्स के, और इससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफीद हुए हैं। इवन वो लोग थे जो बिल्कुल न्यू थे, मैं खुद हैरान होता हूँ कुछ ऐसे लोगों को देख के जिनकी एजुकेशन साइंस से नहीं है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं और इवन बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्यों? उनको वहाँ पे बहुत ही छोटे स्टेप पे, इवन के स्मॉल लेवल पे जो सॉफ्टवेयर थे वो सिखाए गए हैं और जो उनको समझ मैट्रिक भी का आ गई बच्चा है। था ना, मैट्रिक उनको का बच्चा, मैट्रिक के बच्चे, हमने तो माशा से इंजीनियरिंग की हुई है और जी जी स्टडी करके इस लेवल पे आए हैं, लेकिन जो मैट्रिक लेवल का बच्चा था ना, अगर वो जी भी उसे देखना शुरू कर दे तो वो भी इतना एंगेज जी, कर देता कि बिल्कुल वो उसे समझ बिल्कुल। जाए कि ये ये आपकी जो रिप्लाई है। सजेशन आपने पुट की है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जिसने सीखना है ना, उसके लिए पूरी दुनिया है। इवन हर इंसान सीखने वाले को ना कोई ना नहीं करता। इवन पूरी दुनिया उसका मिलके साथ देती है। और ये इंसान खुद अगर कुछ सर्च करना चाहे तो मैं नहीं मानता कि उसको कोई मतलब वो होगी, कोई मुश्किल होगी। इंसान के पास आज सबसे बड़ी चीज उसके अपने हाथ में है, स्मार्टफोन। तो उसे पूरी दुनिया उसके हाथ में है, तो वो सीख सकते हैं। उसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनकी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो निशान के पास? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप IoT बेस्ड डिवाइसेस पे वर्क कर रहे हैं, यानी रस्ट प्रोग्रामिंग वगैरह पे, तो आ उसके हिसाब से मैं स्टडी कर रहा हूँ PIACC से रस्ट प्रोग्रामिंग में ना, तो वो जी जी। IoT का फर्स्ट ईयर था, वहाँ से AI का ले रहा था। तो आइए वो भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से करना चाह रहा था मैं कुछ काम वगैरह। देखिए, आईओटी पे मैंने काम किया था। मैंने यहाँ पे लिस्ट तो नहीं किया, मैंने ये काम किए थे कुछ अर्सा पहले। मैं एक एम्बेडेड सिस्टम की कंपनी में काम कर रहा था। तो आईओटी मैंने अपने बैचलर में भी काम किया था, वहाँ पे मैंने काम किए थे। उसमें जो आर्डिनो की इंटरनेट शीट्स थी, ये जो कुछ बोर्ड थे ESP32 के और माइडियो के थे, और कुछ FPGAs पे मैंने काम किया वो था। तो मैं जानता हूँ आपको, जी मैंने जी जी आपका वर्क देखा हुआ है पहले। जी जी। अ, तो क्योंकि मैं अभी अभी करंट भी कर रहा रिसर्च है में कोई काम, इसलिए। नहीं नहीं, अभी तो वर्क नहीं हो रहा है। अभी मैं अपनी जो रिसर्च वर्क है वो कर रहा हूँ, और एक बस जॉब कर रहा हूँ जो PCB डिजाइनिंग की है, और उसके अलावा कुछ आउटसोर्सिंग करते हैं काम की। तो जस्ट Next question, please. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और इसमें आवाम भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जॉब्स नहीं हैं। हाँ और जी। इसके अलावा इससे हट के ई-कॉमर्स में भी आजकल बहुत बूम है कि लोग वहाँ पर भी आ रहे हैं। तो मेन एग्जैक्टली। इशू ये आता है कि लोग स्किल्स भी सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है क्लाइंट का जो ढूँढना है वो सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो बिल्कुल। आप ये बता सकते हैं कि कैसे हम क्लाइंट ढूँढ सकते हैं? बिल्कुल, मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, मैं रिस्पेक्टेड फ्रेंड, एक चीज़ होती है कि आपके पास वो स्किल हो इसमें सैचुरेशन कम हो। अब अगर मैं बात करूँ कि जनाब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली है, लेकिन हमारे पास तो इंजीनियर अबंडेंट फॉर्म में पड़े हैं, ठीक है? अभी मैं आपको ना एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं अपने, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई है, इवन मास्टर कर चुके हैं। तो वो जब मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने फ्रीलांसिंग करनी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा आप किस सॉफ्टवेयर पे करना चाहेंगे, किस पे? वो कहते हैं जी हम लोगो डिजाइनिंग कर लेंगे। मैं उनसे ये कहता हूँ, देखिए भाई, लोगो डिजाइन तो मैट्रिक पढ़ा भी कर रहा है, ठीक है? कोई बड़ा काम नहीं है मेरे ख्याल में। वो कहते हैं डाटा एंट्री। मैंने कहा डाटा एंट्री तो आप मैट्रिक पास को बिठाओ, वो बेचारा भी कर लेगा। वो तो उसका हक है डाटा एंट्री पे, आप क्यों जाते हो?
तो इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना आपको, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा उस स्किल की तरफ जाओ एक जो कि आपकी फील्ड का हो। देखिए, जो आपकी फील्ड का स्किल होगा ना, आप डेफिनेटली उसमें कुछ पहले पढ़ चुके होंगे, उसको और पॉलिश करेंगे, उसमें और अपना नॉलेज ऐड करेंगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ ऐसे स्किल होते हैं जिन पे दुनिया बहुत कम जा रही होती है। अभी मैं नहीं जानता आपकी एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, होपफुली बहुत अच्छी होगी मेरी तरह, मतलब कि आप मास्टर कर चुके होंगे। तो एक स्किल है आजकल बहुत डिमांडिंग है हमारे यहाँ पे। अभी इतना वो नहीं है, मतलब लोगों को एक्सेल, जो एमएस एक्सेल है ना, वो एक जो होगा बैचलर वाला बच्चा वो भी यूज कर लेगा, जो मास्टर वाला वो भी यूज कर लेगा, जो किसी कंपनी में काम कर रहा है वो भी यूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक है एक्सेल वीबीए। मैं इसकी अक्सर अपने दोस्तों को एग्जांपल देता हूँ एक्सेल वीबीए की ना। विजुअल बेसिक से प्रोग्रामिंग के जरिए एक लार्ज डेटा सेट को आपने एमएस एक्सेल के थ्रू करना है। अब इसके एक्सपर्ट बहुत कम है, क्यों? इसमें बेसिकली दो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको चाहिए। आपको एक्सेल भी आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये जिन लोगों के पास ये वाला स्किल है, मैं आपको इवन फाइवर पे दिखा सकता हूँ कि उनके पास ऑर्डर्स नहीं रुक रहे, वो लोग फिर आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं। तो जहां तक आपका सवाल है, मैं ये कहूंगा, फिर आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि क्लाइंट को हम कैसे अपने काबू में करें। उसका ये है कि ये चीज मैंने पहले भी बयान की है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी एक सॉफ्टवेयर पे ग्रिप है, एक तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छी होनी चाहिए, वो आपको मैसेज करे, आपका टाइमली रिस्पॉन्स जाना चाहिए। ये ना वो आपको मैसेज कर रहा है, आप उसको आधे घंटे बाद उसके एक मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। पहली चीज, आपका टाइम, आप यू मस्ट बी ऑन टाइम, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसको फुली सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर काम किया, उसको टू बी ऑनेस्ट होके बताएं। अगर आपको 50% उसकी वो है नॉलेज है, वो बताएं। अगर आप कहीं से करवाना चाहते हैं तो उसको ये ऑप्शन भी बता दें। फिर एक और चीज आती है कि आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ना वो है, ग्रिप है, आप अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं, आपके डेफिनेटली आपने पहले काम किए होंगे, आपने किसी न किसी फर्म के लिए, किसी न किसी प्राइवेट पे आपने काम किया होगा। आप क्या करें, आप उसको शो केस करें। आप देखिए, मैं मैं एक रिपोर्ट राइटर को ना हायर करने जा रहा हूँ, अब मुझे तो इतने लोग मिल जाएंगे वहां पे वेबसाइट पे। जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, मैं किसको हायर करूंगा, मैं देखूंगा कि ये एक बंदा है, उसने अपना काम लगाया हुआ है, अच्छा इसने तो ये वाली रिपोर्ट बनाई हुई है, इसको सीवी बनानी भी आती है, इसको मेमो बनाना भी आता है, ये अच्छी क्या कहते हैं ग्राफिक भी कर लेता है। ये जब सारी चीज अपने अपने सैंपल वर्क लगाया होगा ना, तो वो बंदा खोल के देखेगा, वो श्योर होगा कि ये बंदा काम कर रहा है। एक चीज देखिए, पहला क्लाइंट लेना थोड़ा सा टफ होता है, आपको मौका मिलता है, आपने उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से और आपका जो अपना सॉफ्टवेयर की स्किल है उससे आपने उसको पकड़ना होता है। जब आपके पास एक मिल जाए, फिर आपने उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आप क्या कहते हैं, मेरे उस पर एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दे के, अच्छा सा फीडबैक लाजमी दे के जाए। वो जो एक फीडबैक है ना, वो आपके पास 10 और लोगों को लेके आएगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने ओपन किया थोड़ी देर पहले, मैं देख रहा था कि अच्छा जी इसने 11 जॉब्स कर ली है, इसने 5 जॉब्स कर ली है, अच्छा ये रिव्यूज हैं इसके। मैं भी लोगों से काम करवाता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ, जब मैं एज अ कस्टमर बन के जाता हूँ, मैं ऐसे ही देखता हूँ कि मैं किसको हायर करूँ। मैं डेफिनेटली उस बंदे को हायर करूंगा कि जो पहले काम कर चुका होगा सॉफ्टवेयर पे, उसने अपना कोई ना कोई सैंपल वर्क वहां पे लगाया होगा, और जब मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे 2-3 सवाल पूछूंगा, वो मुझे उन सवालों के जवाब देगा कि कि जो मैंने उससे सवाल पूछा है वो उसका बिल्कुल सही जवाब देगा, हाँ मैंने इसके रिलेटेड काम किया हुआ, ये मसला ऐसे हल हो सकता है। आई होप कि आप कुछ किसी हद तक सेटिस्फाई हो चुके होंगे मेरे आंसर से। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा जवाब दिया। एक जी और क्वेश्चन था जी जी कि श्योर। अगर हमें फाइवर, अपवर्क और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उसमें से हम हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते, जी या सपोज करें कि $100 का काम है वो हमें $5-10 में मिल रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं इस वजह से, तो जी क्या जी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फेसबुक पे हम एक पेज बनाएं जिसको हम स्पॉन्सर करें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जैसे यूएसए, यूके में, और उसमें हम वहाँ से क्लाइंट्स जो हैं डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप में लेकर आएँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस तरह से क्लाइंट्स आते हैं, या इस तरह से डायरेक्ट हम जो है अच्छा काम ले सकते हैं?
जी जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आपको बहुत सारे पेज मिल जाएंगे, इवन फेसबुक पे बहुत सारे पेज है। मैं इवन कई बार खुद मेरे पास कोई काम होता है, जब मैं मेरे पास काम का बर्डन होता है और मुझे मेरे जो एक्सपर्ट मेरे साथ हैं वो भी लोडेड चल रहे हैं, तो मैं वहां से हायर करता हूँ अपने पाकिस्तानियों को। मैं इवन इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पे भी हायर करते हैं। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास खुद ऐड है, ये जो फ्रीलांसिंग के, मैं वहां पे डाल देता हूँ, वहां से भी ऐड करता हूँ। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब ये बल्कि इवन मैं जिस दौर में मैं काम किया करता था स्टूडेंट्स के लिए, तो उस वक्त मेरे एक दो स्टूडेंट थे, वो इंजीनियरिंग के ही थे, इधर अबू धाबी साइड के। उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था वहां पे, तो वो जिसका काम होता था वो उसमें डाल दिया करते थे। उसमें ये हुआ था कि वो ग्रुप फैलता गया और उसका सबसे एडवांटेज मुझे हुआ, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट मैं था सिर्फ। तो कोशिश ये करें कोई ऐसे एक दो या तीन ऐसे अपने क्लाइंट होते जो आपके क्या कहते हैं ना, जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ चले। उससे क्या होगा, आपको बिडिंग में नए प्रोजेक्ट पकड़ने में टाइम नहीं जाया नहीं करना पड़ेगा। आपको दो तीन लोग मिल गए, आपकी मंथली जो नीड है वो पूरी हो रही है, ठीक है। तो आपको जरूरत ही नहीं है ज्यादा भागने की इधर उधर। तो लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश आपको पहले करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी आपको कि ऐसे लोग ढूंढने के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जी सर, ये ठीक है, लेकिन मैं ये कुछ और पूछ रहा था। मैं जी ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम पेज बनाकर हम उसको स्पॉन्सर करते हैं यूएस से हाँ यूके में, और वहाँ से आप क्लाइंट्स को पेज क्या, डायरेक्ट मैं मार्केट आपको में। इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन देता हूँ। गूगल वेबसाइट ना फ्री है बिल्कुल, उसका जो मतलब वो है ना प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल फ्री है। आप अपनी साइट बनाएं। मैंने अपनी साइट खुद बनाई हुई थी। तो मैं फॉर एग्जांपल किसी मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात होती थी या किसी जो स्टार्टअप होती थी कंपनीज में, उनको अपनी साइट दिया करता था कि आप इस पे आए। अब साइट का जो होती है एक्सेस वो मेरे पास होती है। अगर कोई बैड कमेंट भी करता तो मैं उसको खुद रिमूव कर देता था। लेकिन जबकि आप प्रोफाइल पे अपनी फाइवर की अपवर की प्रोफाइल पे अपना बैड कमेंट को रिमूव भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं, फेसबुक का बना सकते हैं, व्हाट्सएप का, उसको वहां पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। उससे आप डायरेक्ट क्लाइंट लेंगे और आपको जो आपका मार्जिन रखती है ये जो वेबसाइट्स हैं वो भी नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पेमेंट लें। जी जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ थैंक यू। बिल्कुल, ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, नो इशू जी। और कोई जो पार्टिसिपेंट जो कैसे, क्योंकि मीटिंग का टाइम भी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं। जी हेलो जी जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा जो है ना राइटिंग का एक्सपीरियंस है, जैसे आपको पता है कि राइटिंग होती है, राइटिंग भी आसान करे। सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आपका एक्सपीरियंस इसमें है 5 to 6 ईयर का? राइटिंग से रिलेटेड है, जैसे राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग राइटिंग मैं समझ गया। क्रिटिकल ठीक है, राइटिंग। ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, यानी कि कहाँ से मुझे क्लाइंट जो है मिल सकते हैं ज़्यादा? मैं आपको जो मैंने देखा है, मैंने ये स्टडी पे तो मैंने काम किया है और मैंने उसकी आपको इवन अपनी अर्निंग भी शो की। इस पे क्रिटिकल राइटिंग, एसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, बहुत जॉब्स पड़ी हैं। ये साइट है ही इसीलिए है। आप इस पे जाके लॉग इन करें एज एन एक्सपर्ट, तो आप बिलीव भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको 90% काम इसी के वो मिलेगा, रिलेटेड मिलेगा। और ये एक मैंने देखी है। इसके अलावा आपको अपवर्क पे भी डेफिनेटली वो एक बड़े प्लेटफॉर्म है, उस पे पड़े होते हैं। इवन जो ब्लॉग राइटिंग मेरी अपनी एक वक्त में गिग रही है फाइवर पे, तो मैं वो फाइवर पे वो काम भी करता रहा हूँ ब्लॉग राइटिंग का। तो इसके लिए राइटिंग सर्विसेज जहाँ जहाँ आप दे सकते हैं, वो जो मैंने देखे अभी तक, वो फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, ये जो मैंने स्टडी में मेंशन किया है ये है। और इवन जो कोर्स हीरो है ना, आप इस पे एज एन एक्सपर्ट, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में जा सकते हैं। इस पे भी बिल्कुल यही क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल रिपोर्ट्स की स्पेशल वहाँ पे वो आए होते हैं क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन आपको $5 मतलब रिवार्ड मिलता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए अगर आप एक ही जगह रहेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो गया। आप देखें, आपने अपनी रूटीन में भी देखा होगा, अपनी डेली लाइफ की लाइफ में, अगर कोई एक ब्रांड होती है ना तो वो एक जगह नहीं टिकती, वो हर शहर, एक शहर में 10 जगह अपनी ब्रांचेस खोल लेती है। तो आपको डिफरेंट साइट्स पे जाना पड़ेगा।
ये क्योंकि आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें। एक्चुअली मैं एज अ बिगनर आपसे पूछ रहा था कि जो मेरे लिए अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टडी वे पे जाएं और फाइवर पे जाएं, ये दो आपके लिए बेस्ट है। फाइवर पे आपको जो छोटे ऑर्डर है वो भी मिल जाएंगे, जो $5 to $20 तक, $25 तक, और स्टडी पे आपके लिए बहुत बेस्ट है। उस पे मतलब नए लोग काफी आते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्टडी वे का। हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं आपको एक छोटा सा वो डेमो करके दिखाते कि उस पे अकाउंट कैसे करते हैं। तो आप मुझे उसका अगर छोटी सी वीडियो अगर सेंड करते हैं जी, आप बिल्कुल नो इशू मैं आपको सेंड कर दूंगा कि उस पे आपने एज अ एक्सपर्ट कैसे हायर होना है। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे मीटिंग होस्ट हैं, इनके थ्रू। नो इशू, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर आपका कोई मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे मेरे अपनी जो मेरा टेक्निकल काम है, जो मेरे मतलब प्रोजेक्ट्स के हैं वो उसके रिलेटेड है, लेकिन मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं की इससे पहले। बट आपके लिए मैं आपको लाजमी है हेल्प आउट करूंगा। आप क्या कहते हैं, ये मोहसिन भाई जो मेरा कांटेक्ट है वो शेयर कर देंगे, तो इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कहीं भी कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई थिंक ऑल डन मोहसिन। Yes, thank you so much to all of you and our speakers. Especially thank for you and all the aspirants who attended the session and make it successful even at the end of day. I have simply a quote at the end of day: anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. That's all for today's session.